Good morning, students. Welcome. We'll start with lesson number 38 today. In this lesson, we are going to learn about the meter bridge and its applications. Dear students, there is always a 1 mark or a 3 mark question based on meter bridge. So that is going to be very, very important. So let us begin with meter bridge. Here I am showing you a picture of meter bridge. You may be wondering, why should it be called meter bridge? Simply because the length of this wire, we call this as a potentiometer wire also, the length of this wire is exactly 1 meter between this point and this point. That's why it is called meter bridge. What for do we use a meter bridge? We use a meter bridge to determine the value of a resistor. If we have a resistor, we do not know its value, we can use a meter bridge to determine its value. Now, a meter bridge is based on the principle of a balanced Wheatstone network. Students, in the last video, you had seen what is a balanced Wheatstone network. In that, when no current is flowing through the galvanometer, then the ratio of the resistors, say R1 by R2, was R3 by R4. So it is based on the principle of a balanced Wheatstone network. Students, here we are showing you thick copper strips. Thicker the strip, smaller will be the resistance. So that is the purpose of using thick copper strips. Between A and B, 1 meter long potentiometer wire is there with uniform cross-section area. Between C and D, there is a galvanometer. We have to slide this jockey along the potentiometer wire very, very gently and find a point on it for which the galvanometer does not show any deflection. In stylish language, we say it shows null deflection. Now, let us say that when the jockey is at the point D, then it shows null deflection. So, students, you can see, visualize that between A and B, we have a battery. So, this is the battery arm. And then we have another, the galvanometer arm, which is CD. Let the balancing length be called L. So we know this formula, कि R is equal to rho L by A. So the resistance will be directly proportional to length. So resistance of this wire AD will be directly proportional to L. And since this wire is exactly 100 centimeter long, so naturally the second length would be 100 minus L. So we say that when the bridge is balanced, then we can write one condition. What is that condition? This resistance divided by this should be equal to this resistance divided by this. So X by R is equal to resistance of AD divided by resistance of DB. Since the resistance is directly proportional to L, so we write it as L divided by 100 minus L. So from here we can write the value of X. So this equation tells us that if we know the value of R and L, we will be able to determine the value of X. So the functioning of the meter bridge was so simple. Now let us attend to those 1 mark questions which are asked in the exams. What are the properties of the potentiometer wire that we have used? 2 properties. One, एक तो resistivity ज़्यादा होनी चाहिए और दूसरा, I hope you remember, इस alpha को we call as temperature coefficient of resistance.
तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, क्या क्या? एक तो रेजिस्टिविटी हाई हो और दूसरा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होना चाहिए. What are the precautions that we require to take while performing this experiment? Dear students, when I was explaining to you that we have to move the jockey, we have to slide the jockey along the potentiometer wire very, very gently so that the cross sectional area of the wire does not get affected. So the second thing is that the null point, point D, at which the galvanometer does not give any deflection, should preferably be found somewhere in the middle of the wire. You will say, but why? Because in that case, the meter bridge will become most sensitive. Similarly, a Wheatstone network also becomes most sensitive when all the four resistors are nearly of the same order. This, the third one, is a very, very important term. It has come in the exam. This we call as end error. So, end error in a meter bridge represents the error in the measurement of the resistance of the connecting wires which have not been taken into account. May I go back to the diagram again and ask you what is the resistance across AC? Immediately you will say resistance across AC is X. But what we have forgotten is the resistance of these thick wires and the connecting wire which is under the point A. तो जो एंड एरर है वो रिप्रेजेंट करती है एरर in the measurement of the resistance of the connecting wires which have not been taken into account. What does it represent? It represents the error. Kisme? In the measurement of the resistance of the connecting wires which have not been taken into account. Now let us begin with the next question. In the first case, a meter bridge has been shown to you. पहले गैप में there is a resistance R और second gap में there is a resistance S. The jockey is made to gently slide on the wire to get a null point. The question says कि the null point is obtained at a distance L1. मतलब पहली लेंथ L1 है तो सेकेंड लेंथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी 100 माइनस L1. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि जब ये गैल्वेनोमीटर गिव्स नल डिफ्लेक्शन तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज में याद कर लें, दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस should be equal to पहले वाली length divided by the second length. So like that we have written one equation. Now the question further says कि इस resistance S के across एक resistance X लगा दिया है. Stylish language में कहते हैं that the resistance S has been shunted. Shunted मतलब something is connected in parallel with it. तो अब पहले गैप में वही रेजिस्टेंस है, सेकंड गैप में S के साथ एक और रेजिस्टेंस है X, एंड नाउ अगेन ए बैलेंसिंग लेंथ L2 हैज बीन फाउंड. मतलब जो नल पॉइंट है दैट हैज बीन फाउंड एट D और ये जो लेंथ है ये L2 है. तो ऑटोमेटिकली ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस L2. I hope dear students you know the direct formula कि जब दो रजिस्टर्स आर इन पैरेलल तो उनका आंसर आता है प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू. सो अब जो मीटर ब्रिज की थियोरी है वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि पहला रेजिस्टेंस
डिवाइडेड बाई दूसरा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पहले वाली लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड लेंथ। तो यहाँ पे मैंने x प्लस एस को पहले लिख दिया है, ऊपर लिख लिया है, x वहीं रखा, r अपॉन एस अपनी जगह है, L2 डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड कर लिया, 1 प्लस एस अपॉन एक्स इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2, और ये ऊपर गया s और ये r नीचे आ गया। s अपॉन आर की वैल्यू, सी r अपॉन एस है, तो s अपॉन आर की वैल्यू यहां से देख के लिख दी 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1। ये 1 जो इधर था ये इधर ले गए, -1 आ गया। इसके बाद एलसीएम ले लिया, तो 100 माइनस L2 माइनस L1, ये टर्म ऊपर वही रहेगी, L2 इंटू 100 माइनस L1, माइनस ये वाली टर्म अब इधर चली जाएगी, L1 इंटू 100 माइनस L2। तो इस टर्म को मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 100 इंटू L2 माइनस L1 L2 माइनस L1 इंटू 100, ये प्लस हो गया L1 L2, ये कैंसिल हो गया, 100 कॉमन ले लीजिए और अंदर L2 माइनस L1 आ जाएगा, और इसको इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, x अपॉन एस लिख दीजिए, और x की वैल्यू आ गई ऑल दिस इंटू एस। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स इन्वॉल्व इसमें बहुत छोटी सी थी, बस ये पता होना चाहिए, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो दोनों केसेस में हमने यही किया है, और उसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स था ये। लेट अस नाउ बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले केस में ही सेज कि फर्स्ट गैप में एक रेजिस्टेंस x है, दूसरे में y है, और जो नल पॉइंट मिलता है वो 60 सेंटीमीटर पे मिलता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी लेंथ हो गई 40 सेंटीमीटर। हम बहुत इजीली एक इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या कि x अपॉन वाई विल बी 60 अपॉन 40। देन द क्वेश्चन सेज कि जो सेकेंड गैप है उसके अंदर y के साथ एक और रेजिस्टेंस लगाया है 15 ओम का, और अब ये पता चलता है कि पहली लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दूसरी भी 50 हो जाएगी। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, y प्लस 15 आएगा। अब आपने सिर्फ वो इक्वेशन लिखनी है, पहला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकेंड इज इक्वल टू पहली लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड। अब स्टूडेंट्स फ्रॉम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास देखिए दो इक्वेशंस हैं 1 एंड 2 इन टू वेरिएबल्स x एंड y, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लिया x की वैल्यू a आ गई और y की वैल्यू आ गई b, तो यहाँ तक देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास वही मीटर ब्रिज फिर से है, पहले गैप में वही रेजिस्टेंस x है। ही सेज कि अगर हम y के साथ एक 60 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दें तो व्हाट विल बी दिस लेंथ L। हमने वही जो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू। तो आपने सिंपली वो एक लाइन याद कर लेनी है, क्या, पहला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकेंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पहली लेंथ डिवाइडेड बाय सेकेंड लेंथ। अब क्योंकि x और y की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहां से हम फिर L की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। तो इट वाज सो सिंपल। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मीटर ब्रिज पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसमें हमने एक मीटर ब्रिज दिखाया है एंड द क्वेश्चन सेज कि एक रेजिस्टेंस x लगा है पहली गैप में और दूसरे में 4 ओम रजिस्टर लगा है। जो नल पॉइंट मिलता है वो 60 सेंटीमीटर पे मिलता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी लेंथ विल बी 40 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, क्या कि एक तो फाइंड x
और दूसरा कि हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन बाय द फ्रॉम द सेल, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा। इसमें ये दिया है कि जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी इज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि ये जो वायर ए बी है, 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.01 ओम है, तो 100 सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि ये ब्रिज बैलेंस्ड है इसलिए हम वही इक्वेशन गाएंगे। कौन सी, पहला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दूसरे वाला इज इक्वल टू पहली लेंथ डिवाइडेड बाय दूसरी लेंथ। तो यहां से आराम से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ए बी। 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस 0.01 है और 100 सेंटीमीटर का होगा 1 ओम। अब हमने इस डायग्राम को ट्रांसलेट करना है। एक बार दिखा दूं डायग्राम। ये ए बी है और यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो एक ब्रांच ये बन जाएगी, एक ब्रांच यहाँ नीचे बन जाएगी। तो ऊपर वाली ब्रांच में ये x की वैल्यू 6 ओम आ गई थी, ये 4 ओम है, और नीचे वाला जो पोटेंशियोमीटर वायर थी वो 1 ओम है। तो ऊपर ये दोनों रजिस्टर सीरीज में थे, इसलिए आंसर 10 आ गया, ये 1 है। अब ये दोनों जो हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू, तो वो हो गया 10/11। अब हमने ओम्स लॉ लगाना है और करंट की वैल्यू लिखनी है V डिवाइडेड बाई R। वोल्टेज 5 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 11, तो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं एज 5.5 एम्पियर। ये एक सिंपल थियोरी का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है। हाउ विल द बैलेंसिंग लेंथ चेंज इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज डबल्ड? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब हमको नल पॉइंट मिल जाता है तो हम ऐसे लिखते हैं ना, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू पहला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई सेकेंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ AD डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ DB, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L डिवाइडेड बाई A, रो L सेकेंड केस में 100 माइनस L है डिवाइडेड बाई A। स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन से ये लर्न कर रहे हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है, जो लेंथ L है, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। तो ये इक्वेशन बताती है कि जो लेंथ L है, बैलेंसिंग लेंथ, वो डिपेंड नहीं करती ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। So doubling the cross sectional area will have no effect on the balancing length. चलिए एक और देख लें। The question says कि दो रजिस्टर हैं R and S। पहली ये लेंथ जो है वो L है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी हो जाएगी 100 माइनस L। तो हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं R/S इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 100 माइनस L। He says कि अगर R और S की पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर जो नई लेंथ होगी वो क्या होगी। ये कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो जब इंटरचेंज कर दोगे तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। तो पहली लेंथ 100 माइनस L हो जाएगी, दूसरी L हो जाएगी। Then he is asking another technical question कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को और सेल को की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा ऑन द लेंथ दैट वी ऑब्टेन इन द मीटर ब्रिज। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि जो मीटर ब्रिज है ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क है, और व्हीटस्टोन नेटवर्क में हमने ये स्टडी किया था
कि बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बैटरी आर्म एंड द गैल्वेनोमीटर आर्म, जो कंडीशन है फॉर द बैलेंसिंग लेंथ वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब आप गैल्वेनोमीटर आर्म और बैटरी आर्म को अगर इंटरचेंज भी कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऑन द बैलेंसिंग लेंथ एल। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी टॉपिक था आज का, एंड आई होप कि आप इसको करके 3 मार्क्स एग्जाम में बड़े आराम से ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।